فعل مضارع سٹارٹ ہوا تھا. اس کے علاوہ کوئی نئی چیز پڑھی تھی فعل مضارع کے ساتھ میں؟ جی 3 حرفی فعل کے 3 حرفی فعل کے ابواب پڑھائے تھے. ہاں 6 ابواب. ہاں جی ابھی جو ہے پھر سے آپ لکھیں گے یف علو. یہ اس کی ہیڈنگ لگا دو. یہ ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ مضارع. کیا سیکھ رہے ہیں؟ مضارع. مضارع کا میننگ ہے پریزنٹ اور فیوچر. پریزنٹ اور فیوچر. اور اس کو انہوں نے آپ نے آتینہ بھی بہت بتایا تھا. آتینہ نشانی ہے. اس کی پہچان بتایا. فیوچر آتین جو ہے پہچان جو ہے اس کی پہچان. اس کی پہچان جو ہے الف عطین یا تا الف اور نون شروع میں آئے گی. شروع میں آئیں گے. یا تا الف نون. اس کو شارٹ میں آپ لکھتے تھے میں نے اس سے عطین. عطین یا تا الف نون. دیکھیے ہم لوگ فعل مضارع پڑھ رہے ہیں. فعل مضارع کا مطلب ہے پریزنٹ اور فیوچر ٹینس. ماضی ہم پڑھ چکے یعنی پاسٹ پڑھ چکے. اب اس میں بھی وہی ترتیب ہے. 3rd پرسن کے 6, 2nd پرسن کے 6 اور 1st پرسن کے 2. ٹوٹل 14 سیگے اس میں ہوں گے. اور پریزنٹ اور فیوچر. پریزنٹ کا مطلب ہے اس کے ترجمے میں کیا آئے گا؟ کھاتا ہے, پیتا ہے, سوتا ہے, یا کھا رہا ہے, پی رہا ہے, سو رہا ہے. اس طرح کا ترجمہ آئے گا پریزنٹ ہونے کی وجہ سے. فیوچر کھائے گا, پیے گا, سوئے گا. اس طریقے سے اس کا ترجمہ ہوگا, یعنی دونوں ہوگا. ٹھیک ہے, ایک ہی ساتھ دونوں ترجمے ہم نے کرنا. دوسری یہ کہ اس کو پہچانیں گے کیسے؟ تو جس فعل کے شروع میں یا کا الف نون ان میں سے کوئی ایک حرف یا تو یا ہو یا پھر تا ہو یا پھر الف ہو یا پھر نون ہو, ان میں سے کوئی ایک حرف بھی اگر شروع میں آیا تو آپ سمجھیے کہ یہ فعل مضارع ہے. فار ایگزامپل میں نے لکھا نصر. نصر کیا ہے یہ؟ ماضی ہے. فعل ماضی. اس نے مدد کیا فعل ماضی. بٹ جیسے آپ نے بولا, کوئی بولا ایسے نون آ رہا, تو چلو نون کو کٹ کرنے کے بعد کتنے حرف بچے؟ 2 حرف کا کبھی بھی فعل نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ کہ نون اس کا اوریجنل ہے. نون اس کا اوریجنل ہے. یا تا الف نون شروع میں آئے اس کا مطلب ہے کہ زائد, ایکسٹرا, ایڈیشن. یہ ہو جائے گا ینصر. اب دیکھو یہ نصرہ ہے. یہ کیا ہے؟ نصرہ. اب میں لکھتا ہوں تنصر. ٹھیک ہے, میں نے لکھا تنصر. اب اس میں اگر آپ کو کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ ماضی ہے یا مضارع, تو آپ یہ پہچان کو دیکھیے. یا تا الف نون 4 پہچان میں سے شروع میں کیا آ رہا؟ آپ سمجھیے کہ مضارع. اب یہ مضارع 2nd پرسن ہے, 3rd پرسن ہے, 1st پرسن ہے, وہ آسانی سے آپ کو سمجھ جائے. ٹھیک ہے, تو یہ تو ایک تو ہو گئی کہ جس کے شروع میں یا تا الف نون ہو. دوسری پہچان جس کے لاسٹ میں پیش ہو. جس کے لاسٹ میں پیش ہو. سنگل ورڈ ہے تو سنگل سیگا, سنگولر سیگا, اس کے لاسٹ میں ایک پیش ہوگا مضارع میں. لیکن جب تثنیہ آئے گا تو پھر وہ پیش نہیں رہے گا, کیونکہ وہاں پھر الف نون آ جائے گا.
फिर जमा आएगा तो फिर वाव नून आ जाएगा किधर, तो वो चेंजिंग होते रहेगा। लेकिन पहले सीगे को पहचानने का तरीका है जिसके शुरू में या ता अलिफ नून हो और लास्ट में एक पेश हो, ये पहचान है मुजारे की। सिंपल तरीका है। फॉर एग्जाम्पल आपको नसारा को मुजारे बनाना, तो मैंने क्या बोला, आपको क्या लगाना पड़ेगा शुरू में, तंसुरु क्या लगाना पड़ेगा, ता यफअलु कोई एक लगा दो। चलो मैंने या लगा दिया, या लगा दिया, य तो या नसारा, ऐसा तो नहीं पढ़ेंगे। नहीं, तो अब आप बोलिए पहले हरफ को जज़म दे दो, यन पहले हरफ को जज़म दे दो, और लास्ट में मैंने क्या बोला, रा को क्या आएगा, पेश। पेश। ये तरीका है सिंपल। यंसुरु अब आपको मैं एक हरफ देता हूँ, समझो क़ातला, समझो कत्लुन, 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 कत्ल करना। अब इसका आप पहले तो माजी बनाओ, पहले तो माजी बनाओ, past tense बनाओ। कतला तो चलिए क़ातला, ये हो गया माजी, माजी का ये तरीका। या ये कि बीच वाले कातिला ऐसा आएगा, लेकिन इधर आएगा नहीं। ये बीच वाले को जबर जेर पेश तीनों आ सकता, लेकिन यही हो, इधर जबर इधर जबर, ये माजी के बनाने का तरीका। अब इसको आप मुजारे बनाइए तो कैसे बनाएंगे, क्या बताया मैंने, यक्तलु या ता अलिफ नून में से कुछ भी लगा दो, यक्तलु या लगा दो, चलो या। अब दूसरे नंबर पर आपको क्या करना है, जज़्म लगा देना। नहीं, इसको जज़म देना है ना, दूसरे नंबर पर उसके बाजू वाले हरफ को जज़म देना, और लास्ट में क्या करना है, पेश। अब बोलिए यक्तलु यक्तल, बात समझ रहे, ये तरीका है सिंपल, और कुछ नहीं। नहीं, अभी इसमें यह त न हो गया, अ का नहीं बताया, अ का। क्या अभी इसमें जो है पहचान या है, क्या बता दिया, अलिफ, अलिफ लगा दो तो अलिफ हो जाएगा। अब करो, मीनिंग बदल जाएगी मगर मीनिंग बदल जाएगा। अभी अनुसरु, नून लगा दो, अभी अनसुरु आएगा। हाँ, या फिर आप ता लगा दो, तो जैसे जैसे हरफ लगाएंगे मीनिंग चेंज होता जाएगा, वो आपको समझेगा। अभी यहाँ पे यंसरु की जगह पे अनसरु लिखना है जी, अनसरु। कुछ भी लगा सकते हैं। या ता मदद करने अलिफ वाले हो सब जाएंगे। लगेगा, लेकिन मीनिंग चेंज होगा। जो ऑनलाइन है उनको समझ में आया मुजारे कैसे बनता है जी। अब हम शुरू करते हैं। उसकी गर्दान असल में इस तरीके से अहम ये गर्दान है, ये आपको समझी तो इस असल है। अच्छा, यफ आलू ये लिखा मैंने, यफ आलू को हटाइए। अब आप वो मैंने 6 बाब लिखा था, ऑनलाइन वाले उसमें थे क्या 3 हरफी फैल के 6 बाब 2 लोग नहीं थे? 6 अबवाब में थे आप लोग? अब आप यंसुरु लिखिए, यंसुरु पहला सीगा, वो मदद करता है या करेगा। अब मुझे ऑनलाइन वाले बताइए, वो 2 मदद करते हैं या करेंगे? ये तस्निया है, तो तस्निया बनाने का रूल मैंने क्या समझाया था आप लोगों को? लास्ट में क्या लगेगा? रानी आनी जैसे अलिफ और नून, अलिफ और नून, या नून नहीं लगेगा फैल में। आप तस्निया बना दो, यन यंसरानी नहीं, सौत पर पेश, यन सु रानी, नून को जेर, अलिफ नून का मतलब नून को जेर, वरना नून को जबर आएगा तो वो जमा का है, पेश आ जाएगा। नून को जबर जमा वाला नून, यन सुरानी। अच्छा, अब आप बोलिए जमा कैसे बनाएंगे? यंसरुन वाव लास्ट में क्या लगाएंगे? ऑनलाइन वाले बोलिए। यंसुरून जमा बनाने के लिए, प्लूरल बनाने के लिए लास्ट में क्या लगाएंगे? वामुन या फिजानी हाँ, तो सिर्फ यहाँ पर वाव नून लगेगा जी। बोलिए यंसुरूना, यंसुरूना, वो सब मदद करते हैं या करेंगे। यह हो गया मेल के लिए, आदमी लोगों के लिए। अब इसके आगे मुअन्नस लिख रहे हैं, मुअन्नस मतलब फीमेल के लिए, तो ता लगेगा। लिखिए तंसुरु,
तंसुरु, ठीक है। फिर वही फॉर्मूला है, तस्निया लगा दो, तस्निया के लिए अलिफ नून लगा दो, तंसुरानी, तंसुरानी। यंसुरना, फिर लास्ट में आएगा यंसुरना। चलिए हम इसको याद करते हैं तो फिर आगे का मसला आसान है। मेरे साथ बोलिए, यंसुरु, यंसुरानी, यंसुरूना। यंसुरु, यंसुरानी, ये सौत को पेश, यंसुरु, यंसुरानी, यंसुरानी, बोलिए, यंसुरूना, यंसुरानी, यंसुरूना, तंसुरु, तंसुरानी, यंसुर, वापस से, यंसुरु, यंसुरानी, यंसुरूना, वापस से, यंसुरु, यंसुरानी, यंसुरूना, वापस से बोलिए, यंसुरु, यंसुरानी, यंसुरूना, यंसुरु, यंसुरानी, यंसुरूना, यंसुरु, यंसुरानी, यंसुरूना, तंसुरु, यंसुरानी, यंसुरना, यंसुरना, तंसुरु, तंसुरानी, यंसुरना, यंसुरना, तंसुरु, तंसुरानी, यंसुरना। तंसुरु, तंसुरानी, यंसुर। अब देखिए, ये है यंसुरु, सौत को या तो एक्स्ट्रा हरफ है, नून, सौत, रॉ, बीच वाला हरफ कौन सा है? स्वाद, सौत। ये बाब नसारा यंसुरु से आया, इसलिए बीच वाले हरफ को पेश आया। अब हम बाब जराबा से लेते हैं। ये देखो, ये अलग से आप लोग लिख दो, 3 हरफी फैल के 6 अबवाब। क्या है? नसारा, नसारा, इधर मुजारे, माजी, माजी को क्या बोलेंगे? पास्ट टेंस, पास्ट टेंस, ठीक है। यहाँ पर प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, ठीक है, इसको बोलेंगे मुजारे। तो अब नसारा का मुजारे आएगा, क्या आएगा? यंसुरु, वो लिखा दिया मैंने, यंसुरु, एक एक सीधा, यंसुरु। उसने मदद किया, माजी, वो मदद करता है या करेगा। अब ये देखो, यहाँ पे है जबर, बीच वाले हरफ को क्या आया? नहीं, बीच वाले हरफ को क्या आया? जबर आया माजी में। उसी बीच वाले हरफ को, सौद को इधर आ गया पेश, ठीक है। अब यहाँ बीच वाले हरफ को देखना, ज़राबा, ज़राबा, बीच वाले हरफ को क्या आया? जबर, जबर। लेकिन यहाँ पे मुजारे में आने के बाद आएगा यज़रिबु, ज़ेर आ जाएगा, यज़रिबु। उसने मारा, वो मारता है या मारेगा। तो रॉ को इधर जबर है, उसी रॉ को इधर ज़ेर है। तो ऐसे बाब का नाम है ज़राबा यज़रिबु बाब, बाब ज़राबा यज़रिबु। अब इसके ऊपर फिट जो भी होगा, आप उसको बोलोगे ये कौन से दरवाजे से आया है? ज़राबा यज़रिबु से। इसके ऊपर जो भी फिट होगा, आप कोई भी वर्ड रहने दो, जैसे क़तला यक़्तुलु, इसके ऊपर फिट हो रहा है, क़तला, बीच वाला हरफ को ज़बर है, यक़्तु, ये बाब नसारा यंसुरु से, ज़राबा यज़रिबु। तो इसके लिए बहुत सारे वर्ड है। फॉर एग्जाम्पल, शराबा, 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 उसने पिया, शराबा, उसने पिया। और यशरिबु, फॉर एग्जाम्पल, यशरिबु, तो उसको ज़ेर आ गया। तो अब आप ये शराबा यशरिबु को कौन सा बाब बोलोगे? ज़राबा यज़रिबु, ठीक है। तो अब यज़रिबु से आप गर्दान कीजिए, यज़रिबु, यज़रिबानी, यज़रिबूना, बोलिए, यज़रिबु, यज़रिबानी, यज़रिबूना,
तजरिबु तजरिबानी यजरिबना तजरिबु तजरिबानी यजरिबना। जी ऑनलाइन वाले समझ में आया? लिखा रहा हूँ पूरे टोटल 6 गेट है, इसको गेट बोलते हैं, 6 दरवाजे, 6 दरवाजे पूरे लिखाऊंगा। 3 हरफी वर्ब के 6 दरवाजे, यानी आप दुनिया के जितने अरबी किताबें, कुरान, हदीस जितने भी आप उठाओगे, अगर वो 3 हरफी वर्ब है, 3 हरफी वर्ब है, तो ये 6 दरवाज़ों पर के अंदर से उनको निकल के आना पड़ेगा। तो जो जिस सांचे में फिट होगा आप उसको बोल दोगे कि ये फला बाब से। तो पहला दरवाजे का नाम है नसारा यंसुर, दूसरे दरवाजे का नाम है ज़राबा यज़रिबु। कोई भी फ़ेल उठाना, फॉर एग्जांपल एक फ़ेल आपने बोला कि निकला, ये निकला एक वर्ब है, निकलना एक वर्ब है ना, ये वर्ब है जिसमें काम हो रहा है, एक्शन पाया जा रहा है ना। फ़ेल किसे बोलते हैं? जिसके अंदर कोई काम का करना या होना पाया जाए, उसी को फ़ेल बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। अब निकलना, अब माजी में इसको ले जाओ तो बोलेंगे वो निकला, इसको मुजारे में ले जाओ तो इसका मतलब वो निकलता है या निकलेगा। तो पास्ट टेंस, प्रेजेंट, फ्यूचर, ये दो। अब इसके लिए निकलने को इधर कैसे फिट करेंगे? तो उसके लिए होगा खाराजा यखरुजु, खाराजा यखरुजु, खाराजा वो निकला, माजी हो गया, यखरुजु वो निकलता है, निकलेगा, मुजारे यानी प्रेजेंट फ्यूचर हो गया। अब इसको ले जाओ, खाराजा यखरुजु को ले जाओ और इन 6 में से किस पर फिट करो, किसी पर भी फिट करो। तो आपको देखेगा खाराजा, समझो खाराजा ऐसे लिखा होगा, खाराजा, और मुजारे उसका आएगा यखरुजु। तो अब देखो बीच वाले हरफ को देखने का माजी में क्या है, उसी बीच वाले हरफ को मुजारे में लेके गए तो क्या आया? पेश आया। तो माजी में ज़बर, मुजारे में उसी हरफ को पेश, ऐसा इस 6 में से किस पर ये फिट होगा? तो बोलेंगे नसरा यंसुरु। देखो इधर ज़बर है तो ये ज़बर आ गया, इधर पेश है तो इधर बीच वाले हरफ को पेश आ गया। तो अब आप बोलो खराजा यखरुजु कौन से दरवाजे से होके आया है? नसरा यंसुरु से। कौन से बाब से होके आया है? फॉर एग्जाम्पल एक आप बोलते हो कि गया, गया ये वर्ब है, वो जाता है या जाएगा ये वर्ब है, तो गया ये पास्ट हो गया, वो जाता है जाएगा ये मुजारे हो गया, यानी प्रेजेंट फ्यूचर हो गया। अब दोनों के लिए क्या बनेगा? ज़हाबा, ये ज़हाबा वो गया, ज़हाबा वो गया। अब इसका मुजारे यज़हबु, 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 ज़हाबा यज़हबु। इधर भी ज़बर है, उसी हरफ को मुजारे में आने के बाद ज़बर, इधर भी ज़बर, इधर भी ज़बर। अब यहाँ पे वो कौन सा बाब होगा? अभी मैं वो लिखाया नहीं, तो वो होगा फतह यफ्तहु। इधर देखिए, फतह, फतह यफ्तहु, फतह यफ्तहु। अब इसको देखिए, इधर भी ज़बर है और इधर भी ज़बर है, तो यहाँ बीच वाले हरफ को ज़बर, बीच वाले हरफ को इधर ज़बर, दोनों जगह सेम होगा। तो आप बोलोगे ज़हाबा यज़हबु कौन से बाब से होके आया है? फतह यफ्तहु से। तो अब इस बाब का नाम पड़ जाएगा कि ज़हाबा यज़हबु ये फतह यफ्तहु के बाब वाला है, यानी किसका बच्चा है? ज़हाबा यज़हबु किसका बच्चा है? तो बोलेंगे फतह यफ्तहु का बच्चा है, क्योंकि उसके सांचे में से वो निकल के आया है। समझ में आया अलीम भाई? तो 3 हरफी फ़ेल जितने भी रहेंगे, मैं ये 6 लिखाऊंगा, अभी तो मैंने 3 लिखा है, मैं लिखा चुका हूँ, ये पढ़ा चुका हूँ, उस दिन शायद आप नहीं थे। तो उन 6 में से होके निकलेगा जितने भी 3 हरफी फ़ेल। यज़रिबु, अब देखो ये यहाँ पे यज़रिबु, ये बीच वाले हरफ को ज़ेर है जी, ये है यज़रिबु, ये बोलिए अब इसको बनाओ, यज़रिबु। अब इसको बनाओ, अब इसको बनाते जाओ, इसके ऊपर फिट होना चाहिए, यज़रिबु जी।
نہیں، با کے آگے یضربانی، با کے آگے الف نون لگاؤ، بانی، پھر با کے آگے واو نون لگاؤ، تو کیا لگاؤ گے؟ یضری، ہاں ایک منٹ، یضری، میں نے یہ لکھ دیا یضری بانی، اوکے، اس کے بعد یضری بونا، یضری بونا، اب بولیے یضربو، یضربانی، یضربونا، بولیے یضربو یضربانی یضربون واپس سے بولیے یضربو یضربانی یضربون واپس سے بولیے یضربو یضربانی یضربون. جی علیم بھائی، ابھی یہ 3 آدمیوں کے لیے ہو گئے، اب عورتوں کے لیے آگے بولیے کیا ہوگا؟ بولیے ایک منٹ، ان کی آواز نہیں آ رہی، ہاں جی بولیے تضربو، ہاں صحیح بول رہے ہو، تضربو تضربانی، یہ لکھ دیا میں نے، وہ عورت مارتی ہے مارے گی، وہ 2 عورتیں مارتی مارے گی، وہ سب عورتیں مارتی مارے گی، تو کیا آئے گا؟ یضربنا، یضربنا، ایسا آیا سمجھ میں؟ یضربنا. تو اب واپس سے بولیے یضربو یضربانی یضربونا، بولیے یضربو یضربانی یضربون واپس سے بولیے تضربو تضربانی یضربن. یضربنا. جی اب ہم ضرب، نصر، ضرب، اس کے بعد جو ہے نہیں، ہم لکھیں گے نصر، ضرب، اس کے بعد سمیع. اچھا، اس کی بھی ترتیب ہے پرٹیکولر؟ ہاں اچھا سمیع، یہ کیوں ترتیب ہے اس کو سمجھاتا ہوں. جی. سمیع، اس نے سنا، پاسٹ ٹینس ہو گیا، اس کا کیا آئے گا؟ یسمع، یسمع، یسمع. اب دیکھیے بیچ والے حرف کو دیکھنے کا، زیر آیا، اسی بیچ والے حرف کو ادھر زبر آیا، زبر آیا تو ادھر زیر زبر، زیر زبر، بیچ والے حرف کو زیر، بیچ والے حرف کو زبر، تو یہ کون سا باب کہلائے گا؟ سمیع یسمع. یسمع، سمیع یسمع. اب دیکھیے یسمع میں لکھتا ہوں، علیم بھائی بولیے بولیے یسمع، آگے بولیے یسمعانی، جی آگے بولیے یسمعون، جی وہ سنتا ہے سنے گا، وہ 2 سنتے ہیں سنیں گے، وہ سب سنتے ہیں سنیں گے. اب یہاں سے فیمیل، آگے بولیے تسمعانی، اور پھر کیا آئے گا؟ یسمعنا، یسمعنا. اب بولیے یسمع، یسمعانی، یسمعون، بولیے یسمع یسمعانی یسمعون واپس سے یسمع یسمعانی یسمعون واپس سے بولیے یسمع یسمعانی یسمعون تسمع، تسمعانی یسمعنا تسمع تسمعانی یسمعنا تسمع تسمعانی یسمعنا. جی یہ ہو گیا 3 باب، ایک باب کی گردان، دوسرے باب کی گردان، تیسرے باب کی گردان ہم نے کر لی. اب ہم چوتھے باب کی گردان. اب یہاں تک میں نے یہ 3 کیوں لکھایا ہے، اس کا لاجک سمجھاتا ہوں. ادھر دیکھیے اس کو دیکھیے، ادھر زبر ہے، ماضی میں زبر،
تو مضارع میں کیا پیش. آیا اس کو پیش. پیش. باب نصارہ ینصب بیچ والا حرف ہے, ہاں. سب کی بات نہیں کرنا, بیچ والا حرف, بیچ والا حرف صاد ہے. اب یہاں بیچ والا حرف صاد ہے کیونکہ یہ یا تو ایکسٹرا ہے اس کی پہچان, اوریجنل ورڈ کا بیچ والا حرف کون سا, اس کے آگے پیچھے اور بہت سارے لگ سکتے ہیں, اس کے لاسٹ میں اور کچھ لگ سکتا ہے. آپ نے اصل مادہ دیکھنا ہے, اصل مٹیریل, اس کا جو بیچ والا حرف صاد ہے تو اس کو پیش آیا. اب دیکھو بیچ والے حرف کو زبر, تو بیچ والے حرف کو زیر. ماضی, ماضی میں اس کو آئے گا زبر. زبر, تو مضارع میں اس کو آئے گا زیر. ہاں زیر. یہ بات ضرب یضرب کہلائے. اوکے, اس کے بعد جو ہے بیچ والے حرف کو زیر. زیر, زبر. تو مضارع میں بیچ والے حرف کو زبر. زبر. بس یہ تین باب کو آپ نے یاد رکھنا, زیر اور زبر. زیر زبر کون سا باب کہلائے گا بولو؟ زیر زبر. سمیع. سمیع یسمع. زبر زبر اور زیر کون سا باب کہلائے گا؟ ضربا. ضرب یضرب. ضربا یضرب. زبر اور پیش کون سا باب کہلائے گا؟ نصرا ینصر. اب اس کے آگے جو تین باب ہے وہ سیم سے, اچھا. ادھر زبر تو ادھر زبر, ادھر زیر ادھر زیر, ادھر پیش تو ادھر پیش, اس لیے وہ یاد رکھنا آسان. فار ایگزامپل سمیع فتح, یہ دیکھیے فتح زبر آیا جی. تو اس میں ہی یفتح, یفتح, دیکھیے زبر تو زبر, تو اب آپ لکھ دو گے زبر, تو مضارع میں بھی کیا آئے گا اس کو, مضارع میں زبر. زبر. زبر 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 کون سا ہوگا بولو؟ زبر اور زبر کون سا یفتح. ہوگا؟ فتح یفتح. اوکے, اب دیکھیے کروما, کروما یک, کروما یکرو, یکرمو. پیش تو پیش, پیش ماضی میں اسی بیچ والے حرف کو مضارع میں پیش, تو کون سا باب کہلائے گا؟ کرما یکرم. کون سا باب کہلائے گا؟ کرما یکرم. کروما یکرمو. آیا سمجھ میں؟ اوکے, آپ نیچے لکھیے لاسٹ والا باب حسیبہ, حسیبہ یحسبو, حسیبہ یحسبو. ادھر زیر تو ادھر زیر. تو کون سا باب کہلائے گا یہ؟ حسیبہ ادھر یحسب. زیر تو ادھر بھی زیر, جی. حسیبہ یس. حسیبہ یحسبو کہلائے گا. آ رہا سمجھ میں؟ جی. اب آپ گردان کرو گے کون سا؟ فتح یفتح, تو کیا لکھیں گے؟ یفتح. یہ بولیے علیم بھائی, بولیے. بولیے. ہاں بولیے. ہاں آگے بولیے. یفتحون, آگے بولیے عورتوں کے لیے. تفتحو, تفتحانی, یفتحنا. یفتحنا. آیا سمجھ میں؟ جی. تو یہ چار باب کی گردان ہو گئی. اب آپ بولیں گے ادھر جگہ نہیں بچی, یکرمو. جی. یکرمو وہ تو سیم ہے, بولیے. یکرمون. زور سے. یکرمو, یکرمو بولیے. یکرمان, یکرمون, ہاں تکرمان, یکرمنا. یکرمنا. ٹھیک ہے. اب آپ بولیں گے یحسبون,
यहसिबु यहसिबु हाँ बोलिए यहसिबु यहसिबानी यहसबु सिबूना यहसिबूना तहसबु तहसिबु तहसिबु तहसिबानी यहसिबना। आया समझ में? सब हो गया? जी। अलीम भाई समझ में आ गया? ये हो गया थर्ड पर्सन। ये थर्ड पर्सन के हमने इतने सारे किए थे अभी। जी, रिवायत अब का। सेकंड पर्सन। पहली बार बोला। सेकंड पर्सन बनाइए, बहुत इजी है, उसमें कुछ दिक्कत नहीं। सब जगह ताता लगाते जाओ, हाजिर का। लाइन से ताता लगाते जाना। तंसुरु तंसुरानी एक तंसुरुना। मिनट जी लिखिए, तंसुरु, थोड़ा सा ध्यान देना है इसमें बस। तंसुरु एकदम इजी है, सेम वैसा, लेकिन एक चीज का ध्यान देना, सिर्फ एक चीज का ध्यान रख सकते हैं ना हम इधर। हाँ। सेकंड पर्सन में चलो दो चीज ध्यान रखो। एक शुरू में ता, एंड तक शुरू में क्या आएगा? इधर शुरू में सब जगह ता है, जी। कहाँ है? नहीं, सिर्फ दो जगह है। दो जगह। या फिर या बीच में दो जगह ता है। हाँ। तो ये या वाले 4 हो गए, ता वाले 2 हो गए इधर, वो औरत और वो 2 औरतें, यहाँ ता आया। अब यहाँ पे जितने 6 सीखे आएंगे सेकंड पर्सन में, तू करता है करेगा, तुम 2 करते हो करेगा, तुम सब, तू औरत करती करेगी, तुम 2 औरतें, तुम सब औरतें करती करोगे। ये 6 सीखों के शुरू में एंड तक लास्ट में ता आएगा। एक चीज याद ये रखना आसान है। दूसरी चीज क्या है मैं बताऊंगा, अभी लिखते जाओ। तंसुरु के आगे दो आदमी तुम 2 आदमी मदद करते हो करोगे तो क्या आएगा? तंसुरानी। तंसुरानी। अलीम भाई क्या आएगा बोलो? हाँ, क्योंकि दो के लिए तस्निया। ये दोनों फिर सेम हो जाएंगे ना? कौन सा? ये तंसुरो। हाँ वो बताता हूँ। तंसुरानी वो याद रखना है, वो सिर्फ याद रखना, सेम होने दो। जैसे हुमा सेम जी जी जी। अंता अंतुमा सेम था, लेकिन वो जगह के हिसाब से पता चल जाता है कि ये किसके लिए यूज है। ठीक है, गायब हाजिर पता चल जाएगा। तंसुरु, इधर तंसुरु किधर है? इधर को तंसुरु, इधर तंसुरु आया, तंसुरानी इधर तंसुरानी आया, लेकिन ये दोनों के दोनों गायब के लिए है। वो औरत करती करेगी, वो 2 औरतें करती करेगी, तो ये दोनों इधर सेम रिपीट हो रहे हाजिर के लिए। लेकिन इसका मतलब है तू करता है करेगा, तुम 2 करते हो करेगा। लेकिन ये आगे पीछे जगह के हिसाब से आपको समझ जाएगा कि मैं इधर तर्जुमा थर्ड वाला करूं या सेकंड वाला करूं। उल्टी मुजक्कर का हो रहा हो, यहाँ मुअन्नस का था। वो भी मुजक्कर का, तो ये आप उसको डिसाइड कर लोगे कि इधर मैं मुजक्कर का करूं किसका करूं। कंफ्यूजन इसके साथ हो रहा है, ठीक है ना? तो ये बहुत अहम है। तंसुरु तंसुरानी, उसके बाद बोलिए तंसुरूना। फिर यहाँ पे एक चीज याद रखना है बस, यहाँ पे अच्छा। इधर देखिए क्या है वो चीज। औरत के लिए तंसुरीना। ये तस्निया के जमा के जैसा दिख रहा है, मुस्लिमीना जमा के जैसा दिख रहा है, लेकिन ये सिंगुलर है औरत के लिए। तू औरत मदद करती है या करेगी, तो तंसुरीना। फिर उसके बाद तस्निया के लिए बोलिए, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? तस्निया के लिए अलिफ नून। अच्छा, तंसुरानी। तंसुरानी। तो अब देखिए तंसुरना, ये यहाँ यंसुरना, वो सब औरतें मदद करती है करेगी, और तुम सब औरतें मदद करती करोगी तंसुरना। तो डिफरेंट हो गया। तंसुरना, तंसुरना, ठीक है। फिर अब देखिए उसके बाद फर्स्ट पर्सन।
फर्स्ट पर्सन अंसुरु, अलिफ लगेगा, अंसुरु। मैं मदद करता हूँ, करूंगा, मैं मदद करती हूँ, करूंगी, दोनों के लिए सेम। और फिर ननसुरु, ननसुरु, हम सब मदद करते हैं या करेंगे, ननसुरु। अलीम भाई समझ में आया? तो अब इसमें देखिए याद करना बहुत आसान है, ये वाला याद करना बहुत आसान है। यहाँ देखो, यहाँ या था, आता था बोलते जाइए। तंसुरु, तंसुरानी, तंसुरूना, बोलिए तंसुरु, तंसुरानी, तंसुरूना, बोलिए तंसुरु, तंसुरानी, तंसुरूना, बोलिए तंसुरु, तंसुरानी, तंसुरूना। सामने है ना, सामने है तो आप बोलोगे तंसुरु, तंसुरानी, तंसुरूना, तंसुरु, तंसुरानी, तंसुरूना। आया समझ में? अब तू औरत तो समझो औरत है, तो आप लेफ्ट साइड से तंसुरीना, तंसुरानी, तंसुरना, तंसुरना, तंसुरीना, तंसुरानी, तंसुरीना, तंसुरीना, तंसुरानी, तंसुरना। देखो इसको देखना है, ये तंसुरीना, इसको देखना है बस, ये इसको हाईलाइट करना। बाकी आपको सब जगह टा लगाओ सेम दिख रहा, ये तस्निया तो सब जगह सेम है। बस इसको इसम का वो वाहिद और जमा वाला नहीं। यंसुरानी, तंसुरानी, 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 कितने तंसुरान है? तंसुरान, तंसुरान दो, फिर यंसुरान और तंसुरान। तो तन 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 ता वाले तीन तस्निया हो गए, ता वाले तीन तस्निया, या वाला एक तस्निया। तो अब ये जगह के हिसाब से समझ जाएगा कि ये सेकंड पर्सन के लिए यूज हुआ है या थर्ड के लिए यूज। सब्जेक्ट देख के पता चलेगा, ठीक है। और अनसुरु, ननसुरु, अलिफ लगा, नून लगा, अनसुरु, ननसुरु, इसमें तस्निया जमा कुछ नहीं रहता। अनसुरु, ननसुरु, मैं करता हूँ, हम करते हैं, ठीक है। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करके आइए, ठीक है ना, तो आसानी से फिर समझेगा। अब इसको अगर नेगेटिव बनाना है तो क्या लगेगा शुरू में? मुजारे, प्रेजेंट और फ्यूचर को नेगेटिव बनाना है। समझो यंसुरु, वो आदमी मदद करता है, करेगा, वो नहीं करता, नहीं करेगा, तो क्या लगेगा? ला, क्या लगेगा? ला यंसुरु। माँ माजी के शुरू, पास्ट के शुरू। अलीम भाई समझ रहे? माँ माजी के स्टार्ट में माँ लगा तो नेगेटिव बन गया, और मुजारे के शुरू में ला लगा तो नेगेटिव बन गया। अना ला यंसुरु, मैं मदद नहीं करूंगा। अना ला अनसुरु, मैं फर्स्ट पर्सन, अना ला अनसुरु, ला अनसुरु, मैं मदद नहीं करूंगा, आना को छोड़ दो, ला अनसुरु, मैं मदद नहीं करूंगा, ला ननसुरु, हम मदद नहीं करेंगे, ये हो गया। ला तनसुरु, तू मदद नहीं करेगा, ला यनसुरु, वो मदद नहीं करेगा, तो ला लगना सिंपल, ठीक है।